All right. Once again, a very good morning to all of you. So, in our last class, we have started levels of management. In that, we have already completed the top level management, right? The top level management is basically the group of people who are having maximum authority in the organization. It includes the CEO, CFO, vice presidents, and presidents of the organization. And we have discussed their main functions also. Now in our today's class, we are going to discuss about the second level, that is middle level management. Middle level management is basically the linking pin between top level and lower level. Three levels है, we are having top, middle and lower. So the linking pin that links the top level management with lower level management is middle level management. ये दोनों को जोड़ता है, दोनों को link up करता है एक दूसरे के साथ. Now let's just read it out. This level of management consists of the departmental heads. Basically इस पे क्या होता है, इस पे departmental heads होते हैं. Departmental heads का मतलब है, जैसे organization में क्या होता है, अलग अलग departments होते हैं. हमेशा कोई भी organization है उसमें बहुत सारे departments रहेंगे. तो जो department को संभालने वाले लोग हैं, कोई भी, for example एक organization है, हम पतंजलि की बात करते हैं, पतंजलि कंपनी है. अब वहां पे काम प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक सारा होगा. और प्रोडक्शन होगा तो कुछ रिसोर्सेस परचेज करने होंगे, फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करना होगा, उसके बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालना होगा, सेल्स करनी होगी, बहुत सारे काम होंगे, राइट. तो अलग अलग काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं. और जो उन डिपार्टमेंट को संभाल रहे होते हैं, जो उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन लोगों को डिपार्टमेंटल हेड कहा जाता है. और ये डिपार्टमेंटल हेड आते हैं बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट में. जस्ट हैव अ लुक. This level of management consists of departmental heads such as purchase department head, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, इट मींस परचेज डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाले पर्सन्स, सेल्स डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाले पर्सन्स, फाइनेंस मैनेजर यानी फाइनेंस को संभालने वाले. Here you have to point down one thing कि chief finance manager is a part of top level management, whereas only finance manager is a part of middle level management. Then after marketing manager जो marketing की activities को संभालेगा, plant superintendent the one who will look after the plant and machinery of the organization, जितनी भी plant and machinery है उसको handle करने वाला, because that is also a different department, right. Only HR manager, that day we have discussed, right, human resource manager, तो सिर्फ कोई human resource manager होगा, that will be the part of middle level management only. Now just have a look, underline this sentence. People of this group are responsible for executing the plans and policies made by top level. It means at top level management, people frame some plans and policies. Those plans and policies are always executed by the people working at middle level. Top level ने तो बना के छोड़ दिया है, plans बना के छोड़ दिए हैं, उन plans का execution सारा किस पे depend करता है, middle level management पे depend करता है. middle level managers ही देखते हैं कि कैसे उस plan का execution होना है. Then just have a look. They act as a linking pin between top level and lower level management. ये जो लोग होते हैं ये टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में लिंक अप करवाते हैं, लिंकिंग पिन बनते हैं. यानी टॉप लेवल ने जो जो चीजें बनाई, जो जो प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम आउट की, वो सभी लोअर लेवल तक पहुंचाना इज द एक्टिविटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. देन जस्ट हैव अ लुक. This one is again important. They also exercise the functions of top level for their department as they make plans and policies for their department. It means वैसे तो ये middle level पे है, but as they are the departmental head, वो अपने department के लिए वो सारे काम करते हैं जो top level management पूरी entire organization के लिए करता है. I am repeating the sentence. जो काम टॉप लेवल मैनेजमेंट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेंगे, द सेम एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉर देयर ओन डिपार्टमेंट. जैसे सीईओ पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जो डिसीजंस लेगा, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगा, वैसे ही कुछ डिसीजंस हो सकता है मार्केटिंग मैनेजर ले अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, सेल्स मैनेजर ले अपनी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए. नाउ जस्ट हैव अ लुक. They also exercise the functions of top level for their department, such as
दे मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देयर डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स और पॉलिसीज बनाएंगे, अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज भी करेंगे और उसके लिए रिसोर्सेज भी कलेक्ट करेंगे. देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस पॉइंट बाय पॉइंट. नंबर 1, interpretation of policies framed by top management to lower level. As we have already discussed that middle level management are the linking pin of organization. So as a linking pin, what they are supposed to do, they just understand the plans and policies framed by top level and they explain such plans and policies to the people working at lower level. It means top level ने जो planning की, they will be communicating all the plans to middle level management और फिर middle level management क्या करते हैं, अपने अपने department के सभी लोगों को plus जो lower level वाला management है वहाँ पे उनको explain कर देते हैं. Now just have a look at the second point. I am reading the point for you. Middle level management act as a linking pin between top level and lower level management. Top से lower को जोड़ने वाला department है ये. They only explain the main plans and policies framed by top level management to lower level. यानी यही वो लोग हैं जो explain करते हैं सारे plans and policies जो कि बनाए top level ने और execute ultimately lower level वालों को करवाने हैं workers से. Have a look at second point. Organizing the activities of their department. हमने टॉप लेवल के फंक्शंस में पढ़ा था ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पीपल वर्किंग एट मिडिल लेवल. यानी टॉप लेवल का एक फंक्शन था मिडिल लेवल पे काम करने वाले लोगों की एक्टिविटीज को डिसाइड करना, राइट, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को. अब इस मैनेजमेंट का टास्क ये है कि इनके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, उनसे काम करवाना. जस्ट हैव अ लुक. Organizing the activities of their department for executing the plans and policies. Generally, middle level managers are the head of some departments. Generally, in 90% cases, they are the head of some department. Now, so they organize all the resources and activities of their department. इसलिए वो क्या करते हैं, जो top level वाले पूरी organization के लिए काम करते हैं वो काम ये अपने particular department के लिए करते हैं. Have a look at third one. Finding out or recruiting, selecting and appointing the required employees for their department. The middle level management selects and appoints the employees of their department. Reading से ही समझ आ रहा है, simple सा point है, right? कि अपने department के लिए जिन जिन employees की requirement है, यानी कि staffing function of management, वो staffing function को execute करना is the function of middle level, right? ये क्या करते हैं, अपने department के लिए जिन जिन employees की जरूरत होती है उनको ढूंढते हैं. Recruiting means finding out, then after selecting and then appointing the employees. Next one, motivating the persons to perform to their best ability. Along with deciding the activities to be performed by people of their department, they are also responsible for motivating the employees. खाली employees को काम देना तो enough नहीं है ना. Along with giving them the work, we need to motivate them time to time so that they can perform their best, right? तो middle level का ही काम है कि ये बार बार employees को various incentives देते हैं. Incentives we have discussed in the class. किसी भी तरीके का लालच काम बढ़िया करने के लिए, राइट? तो ये इंसेंटिव्स देते हैं ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड हो और अपनी बेस्ट एबिलिटी यूज करके वर्क करे. रीडिंग द पॉइंट फॉर यू. The middle level management offers various incentives to employees so that they get motivated to perform to their best ability. इस point के अंदर आपको incentives को underline करना है. They motivate the workers by offering them various incentives. Look at the next one. Cooperate with other departments for smooth functioning. मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. विदाउट दैट थिंग्स कांट बी डन इन अ प्रॉपर वे. जब तक आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा. नाउ लिंक अप दिस सेंटेंस विद एग्जांपल्स गिवन टू यू इन क्लासरूम. बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी आपको, हमने बात की थी कि हम केक अरेंज करेंगे. जब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पढ़ा था तो क्या बिना कोऑपरेशन के काम हो सकता था क्या? डेफिनेटली नो. सो इन द सेम वे जब ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, अगर एक हेड दूसरे हेड के साथ कोऑपरेट करके नहीं चलेगा तो कभी भी काम नहीं हो पाएगा. सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्लान्स इन अ प्रॉपर वे, मिडिल लेवल मैनेजर्स आर सपोज्ड टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट वन,
responsible for all the activities of first line managers. First line manager means the lower level managers. तो lower level manager के सारे काम के लिए कौन responsible होता है? middle level managers responsible होते हैं. lower level manager कैसा काम करेगा, किस तरीके से करेगा, उसकी सारी responsibility किसकी है? middle level management की. Okay. So the next one is supervisory level, lower level, operational level, or we can also say first line management level. The next one, ये जो लेवल है ये मिनिमम अथॉरिटी वाले लोग हैं, इनकी अथॉरिटी लिमिटेड होती है, एक लिमिट सेट होती है, उस लिमिट तक ही इनके पास अथॉरिटी होती है. एंड मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि ये वर्कर नहीं है, वर्कर इसके बाद आते हैं. इट इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इस पे काम करने वाले लोग मैनेजर की ऑपरेशनल टीम होती है. and workers comes under this level of management, right? workers come after this level, under nahi, iske just baad mein workers aate hain. so top level with highest authority, middle level with moderate authority, and the lower level with limited authority. limited, jitni unko powers di hain bas utni hi powers rahengi, inke paas koi khas powers nahi hoti hai. for taking the major decisions they always need to consult the middle level management. उनकी कंसल्टेशन के बिना ये अपने लेवल पे बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं क्योंकि इनके पास उतनी अथॉरिटीज नहीं होती है. तो देखते हैं इस लेवल पे कौन कौन आते हैं. फर्स्ट थिंग, मेक इट क्लियर इन योर माइंड, वर्कर इस लेवल का पार्ट नहीं है, वर्कर इसके भी बाद में आता है. ओके, जस्ट हैव अ लुक. This level consists of supervisors. Supervisor कौन होते हैं? Those who are present to observe the worker. वर्कर जब काम कर रहा है तो वर्कर के ऑब्जर्वेशन के लिए जो लोग बने हुए हैं, those are the supervisors. Then superintendent. Superintendent is basically the person who is also known as caretaker. ऑर्गेनाइजेशन के caretaker के फॉर्म में जो बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जो बेसिक चीजों का ध्यान में रखता है. फॉरमैन, फॉरमैन भी वही वर्कर है जो क्या करेगा? नॉर्मल अरेंजमेंट्स करेगा, नॉर्मल जो जो चीजें हैं, जो जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उनको अरेंज करना, इससे रिलेटेड एक्टिविटीज. सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, एक तो होते हैं डिपार्टमेंटल हेड और एक उस डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं. जैसे परचेज डिपार्टमेंट है. अब एक ऑर्गेनाइजेशन 3 या 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है तो अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल परचेज किए जाएंगे. तो वो क्या करेंगे? परचेज डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स बना देंगे. उन सब डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने वाले एग्जीक्यूटिव्स लोअर लेवल पे आएंगे. डिपार्टमेंटल हेड तो आ जाएगा मिडिल लेवल पे, और डिपार्टमेंटल हेड के अंडर में भी जो सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लोअर लेवल पे आएंगे. इसके अलावा क्लर्क जो रूटीन के डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने का काम करेगा. नाउ जस्ट हैव अ लुक. Managers of this group actually carry on the work or perform the activities according to the plans of top level management. वर्क को करना और प्लस वर्कर से भी करवाना, किसके अकॉर्डिंग? टॉप लेवल के प्लान्स और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, ये इनका काम होता है. नाउ जस्ट अंडरलाइन द सेंटेंस, देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड. अगर आपको पूछ ले आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैविंग लिमिटेड अथॉरिटी, योर आंसर विल बी लोअर लेवल मैनेजमेंट. देन again, this is the sentence which is asked in case studies. The quality and quantity of output depends upon the efficiency of this level of managers. It means आउटपुट कैसा बन पाएगा और कितना बन पाएगा ये एक्चुअली डिपेंड करता है लोअर लेवल मैनेजर्स पे, क्योंकि वर्कर्स को कंटिन्यूअसली गाइड करना, वर्कर्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, चेक करना इज द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय दिस लेवल. तो ये चेक करते हैं कि वर्कर कितना काम कर रहा है और कैसे कर रहा है. ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट सेंटेंस. दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट किसको सबमिट कर देते हैं? मिडिल लेवल को, कि हाँ हमने ये इंस्ट्रक्शन वर्कर को दे दिए हैं. दे विल बी डूइंग द वर्क एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स. ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट वन. They are also responsible for maintaining discipline among the worker. वर्कर को डिसिप्लिन में रखने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? द लोअर लेवल मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली उनसे काम करवा रहे हैं, राइट? नाउ हैव अ लुक ऑन देयर फंक्शंस. नंबर 1, यही आपको पता चल जाएगा कि इनकी अथॉरिटी लिमिटेड है. हैव अ लुक. Representing the problems or grievances of workers before the middle level management. Grievances means confusions or doubts.
तो जितनी भी डाउट्स है वर्कर्स को, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वर्कर्स शेयर द प्रॉब्लम्स विद लोअर लेवल, क्योंकि वो उन्हीं से जुड़े हुए हैं, एंड लोअर लेवल इज सपोज्ड टू रिप्रेजेंट सच प्रॉब्लम्स बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इट मींस लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो वर्कर की प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करे, वो कौन करेगा, मिडिल लेवल वाला करेगा, बट मिडिल लेवल को कौन बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट बताएगा। इट मींस देयर इज अ चेन। कैसी चेन बनी है, सबसे पहले workers are having problems, workers will share it with lower level management, and then the lower level management is going to discuss it with middle level management. I'm reading the point for you. The supervisory level means lower level only. It is another name of lower level management. The supervisory level managers are directly linked with subordinate. ये workers के साथ directly linked होते हैं. So they are right persons to understand the problems and grievances of subordinate. क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, तो ये सबसे सही लोग हैं जो बहुत अच्छे से वर्कर की प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, राइट? देन दे पास दीज प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको मिडिल लेवल तक पास ऑन कर देते हैं। Have a look on next one. Maintaining good working conditions and developing healthy relations between superior and subordinate. Superior means the observer. Subordinate means the person who is doing the work. जिसने आपको इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो सुपीरियर होगा, जो इंस्ट्रक्शन रिसीव करके वर्क करने वाला है वो सबऑर्डिनेट होगा। तो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में हेल्दी रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज सबऑर्डिनेट को लगेगा ये तो बस मुझसे काम ही करवा रहा है, मुझे सिर्फ रूडली इंस्ट्रक्शंस देके मुझसे वर्क करवा रहा है, तो वर्कर कभी भी पॉजिटिविटी के साथ वर्क नहीं कर पाएगा। So for that, lower level managers are supposed to create such a relationship between superior and subordinate कि वर्कर बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करे। Along with this, working conditions भी proper maintain करके रखना इन्हीं का काम है कि वर्कर जहां काम कर रहे हैं वो बढ़िया working conditions हो, वर्कर के लिए पॉजिटिव माहौल हो। Just have a look. The supervisory managers provide good working conditions. Good की कोई definition नहीं है, work to work depend करता है कि good कैसा होगा, right? And create supportive work environment. ये बहुत important है, supportive work environment where superiors support the subordinates, right? Which improve the relation between supervisors and subordinates. यानी supervisor जो observer है उसके और worker के बीच में relation improve करने की duty किसकी है, lower level की। Next one, quite easy, looking for the safety of worker. इस लेवल का काम होता है कि वर्कर की सेफ्टी के लिए ध्यान रखे, वर्कर को सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट दे। कोविड-19 में सेफ एनवायरनमेंट की डेफिनेशन अलग हो गई है। प्रायर टू दैट यहाँ सेफ्टी का मतलब है जैसे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है या जो ऐसे वर्क होते हैं जहाँ हैवी मशीनरी यूज होती है, तो वहाँ वो मशीनें या वो साइट्स वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, they try to maintain precise standard of quality and ensure steady flow of output. The supervisory level managers make sure that the quality standards are maintained by the worker. ये क्या कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं हर बार सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो कंपनी बना पाए। आप देख लीजिए, डेयरी मिल्क आप बचपन से अभी तक खा रहे हैं, क्या आपको कभी टेस्ट में डिफरेंसेस फील हुए? डेफिनेटली नो। डज इट मीन्स कि कंपनी का शुगर सप्लायर चेंज नहीं हुआ होगा, कंपनी के वर्कर चेंज नहीं हुए होंगे या कंपनी की अदर रिसोर्सेज चेंज नहीं होंगे? डेफिनेटली नो, सब कुछ चेंज होता है, राइट? मैगी हम बचपन से खा रहे हैं बट विद द सेम टेस्ट। तो ये मैनेजमेंट टीम का काम होता है कि भले रॉ मटेरियल सप्लायर चेंज हो जाए, वर्कर चेंज हो जाए, टीम चेंज हो जाए, बट कस्टमर को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलती रहनी चाहिए, देन ओनली ही और शी विल ट्रस्ट आवर प्रोडक्ट। तो ये लोअर लेवल मैनेजर का काम है। व्हाट दे एंश्योर इज दैट output produced every time is of precise quality, means same quality, और output continuously बनता भी रहे, shortage नहीं आए market में। Look at the next one. They are responsible for boosting the morale of the workers. Morale, the new word for you. It means desire to work. काम करने की इच्छा, इसको moral read नहीं करेंगे, it is morale. Morale का मतलब होता है हमारी काम करने की इच्छा। तो वर्कर्स के अंदर काम करने की इच्छा को बूस्ट अप करना is always the activity of lower level management.
although it is the function of top, middle as well as lower level managers, all the three levels are responsible for boosting up the morale, but particularly अगर ये आ जाए आपको mention करना है lower level management. Just have a look. They are responsible for boosting the morale of workers and developing the team spirit in them. उनमें team बना के रखना. Why? Because management is a group activity, right? They motivate all the employees and boost their morale. ये workers को motivate करते हैं और उनका morale boost up करते हैं. अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है केस स्टडी में कि मोटिवेटिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट आल्सो एंड इट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ लोअर लेवल. तो मोटिवेशन के साथ अगर ये वर्ड आ जाए बूस्ट द मोरल तो आप लोअर लेवल में लिखेंगे, और अगर मोटिवेशन के साथ आ जाए प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स तो आप उसको मिडिल लेवल में लिखेंगे. आई एम रिपीटिंग द पॉइंट फॉर यू, कीप इट इन योर माइंड. अगर मोटिवेशन के साथ प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स आ जाता है द लेवल आइडेंटिफाइड विल बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और अगर मोटिवेशन के साथ बूस्टिंग अप द मोरल आ जाता है तो द लेवल विल बी लोअर लेवल मैनेजमेंट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जस्ट हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट वन. Minimizing the wastage of materials and maintaining safety standards. Wastage ना हो materials की, right? Efficiently काम हो, ये भी ये ध्यान रखते हैं, और plus again safety standards के साथ काम होता रहे. Next one, again ये case study में पूछा जा सकता है, interact with the actual workforce and pass on the instructions of middle level management. Actually workers के साथ में interaction करना plus वर्कर्स को मिडिल लेवल वाले इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर देना. हैव अ लुक एट नेक्स्ट वन. रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर. आउटपुट की क्वालिटी कैसी है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, आपका वर्कर आपके साथ लॉयल है या नहीं है, ये सब इंश्योर करेगा लोअर लेवल मैनेजमेंट. अगेन द सेम लाइन इज रिपीटेड, 3 बार रिपीट हो रही है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कीजिए. The quality and quantity of output depends upon the hard work, discipline and loyalty of workers. Of आएगा यहाँ पे और की जगह करेक्शन कर लीजिए. And workers are controlled and managed by supervisory level managers. यानी आउटपुट की क्वालिटी और क्वांटिटी डिपेंड करती है वर्कर के डिसिप्लिन पे, और वर्कर्स का डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला लेवल है लोअर लेवल मैनेजमेंट. So I hope it is clear to all of you. What we have discussed is the meaning and functions of middle level management as well as the meaning and functions of lower level management. These are the topics we have completed in our today's class. Now just one more topic. Focus of management functions at different level. अलग-अलग level के managers क्या-क्या काम कर रहे होते हैं. Although management pervasive है और मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है, तो मैनेजमेंट जब हर जगह हो रहा है और कंटिन्यूअसली हो रहा है तो सभी मैनेजर्स सारे काम कर रहे हैं. Any person who performs managerial function, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling, is called as manager. जो भी ये सारे काम कर रहा है वही मैनेजर है, लेकिन अलग अलग लेवल का अलग अलग फंक्शंस पे अलग अलग तरीके से फोकस होता है. जस्ट हैव अ लुक. टॉप लेवल का मेन काम क्या है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. मेन फंक्शन है. इट डजंट मीन्स कि ये लोग स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. ये हमने फंक्शंस में पढ़ा है, सो यू कैन इजीली रिलेट इट, राइट. नेक्स्ट वन, मिडिल लेवल स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा फोकस करता है. कोऑर्डिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन ही रहेगा. नेक्स्ट वन, लोअर लेवल का काम होता है डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वर्कर्स को डायरेक्शंस देना. अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि लोअर लेवल केवल डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करता है. डेफिनेटली नो, सारे फंक्शंस सभी मैनेजर्स करते हैं, बट द मेन फोकस इज ऑलवेज centered according to this point. Okay, so I hope the topic is clear to all of you. Okay, so thank you so much everyone. We will complete our next topic in our next class. We will start our next topic in next class. Till that, have a nice day, stay safe, see you tomorrow.